ओके, सो एज हमने कल डिस्कस किया था, हमने अभी तक इंटरपोलेशन किया है। इंटरपोलेशन करके हमें पॉलिनॉमियल मिल जाता है एफ ऑफ एक्स, राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पॉलिनॉमियल की हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव निकाल के we can find the value of the derivative at any point. So derivative is not a problem, right? So the problem is, say suppose I have n, again x naught, x1. So these are n plus 1 points, y naught, y1, so on up to y. What I want is, I want to find the integration of this. So इनकी हेल्प से मुझे एक पॉलिनॉमियल मिलेगा f of x. इनकी हेल्प से मुझे पॉलिनॉमियल मिलेगा f of x, right? So there is some polynomial जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है. What I want is, I want to find the integration of this polynomial from x naught to xn. Right? So you might say कि हम सेम चीज ही कर सकते हैं, हम पॉलिनॉमियल तो हमें मिल ही गया है, हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. इफ यू रिमेंबर जब हमने इंटीग्रेशन करी थी, हम बेसिकली अगर कोई भी कर्व है उसके अगर हम इंटीग्रेशन क्या करते, कैसे करते हैं, हम बेसिकली उस कर्व को छोटे छोटे ट्रेपीजियम्स में डिवाइड कर देते हैं. सो से दिस इज वन सच ट्रेपीजियम. So if this is some point x, the value of the function, so this height is f of x, and this distance is how much? This distance is delta x. So हमने क्या किया, equal strips delta x के distance की हमने छोटी छोटी strips बना दी. So we know, so let me say this is a rectangle, right? Rectangle. So we know what is the area of rectangle. Area of rectangle is f of x length into breadth. So area of rectangle is length into breadth. अब since this is the area of this rectangle, but मुझे total area निकालना है, so obviously what I'll do, I'll just take the summation of over all these rectangles. But now somebody might say कि मुझे better मिलेगा अगर मैं इन rectangles की width को और कम कर दूं. So I can take this, I can make further small. So basically what happens, जैसे जैसे आप इसको छोटा करते जाओगे, fx is as such, the width will become dx. So dx means infinitesimal small, very small. और ये जो summation है ये change हो जाती है integration में, right? तो अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ की जर्नी पे जाने के लिए आपको number of points बढ़ाने पड़ेंगे. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा सेट है. तो I can't say, I don't know. अब इसको बढ़ाने के लिए in between मुझे कोई पॉइंट चाहिए, इस पे वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, in between points पे वैल्यू नहीं पता है. I just know the value at these points. So this is the reason हम डायरेक्टली पॉलिनॉमियल निकाल के उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे केस में हमारे पास एरर ज्यादा आ जाएगा. So what is the only technique which we are left with is कि हम इन पॉइंट्स को यूज करके कोई और टेक्निक निकाले जिससे हम डिफरेंशिएशन कर सके, इंटीग्रेशन कर सके. So that technique is basically the methods which we'll be studying. Very easy methods. आज मैं try करूंगी कि theory cover कर दूं इन methods की. So in one discussion only, I'll tell you all the formulas. So we just have to remember those formulas and we have to apply those formulas in the questions. So that is not a problem. So just try to understand. So you see, integration हमें पता है क्या होता है, summation होती है. So this is f of x k. So in general, अगर मैं kth rectangle में बात कर रही हूँ, f of x k into some constant. So यहाँ पे if you see this constant is the width. So here k is what? K is 0 to n. So इस case में I want to find the integration. So I know integration is nothing but summation, and I know मुझे सिर्फ यहाँ सिर्फ यही points पता है. So I need to make something of this sort. f of x naught, f of x1, f of xn. मुझे सिर्फ यही पॉइंट्स पता है और साथ में इनकी कोई कांस्टेंट आ जाएगा, लैम्डा नॉट, लैम्डा 1, लैम्डा n, right? So these constants, these lambda k's, they are known as Cotes number. And this formula was given by Newton. So this formula is known as Newton-Cotes formula, right? So this is Newton-Cotes formula for integration. So because हमें पता है integration means summation, so मुझे इन points को use करके I need to find the value of summation
and obviously f of xk के साथ I need to multiply some constant. That constant is known as force constant. बेटा is it clear? यहां तक किसी को डाउट? बेटा सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now what I'll do, I'm moving to the very first formula. So there are mainly three formulas. दो formulas आगे सब part है. So we'll be having trapezoidal rule. We'll be having Simpson 1/3 rule. We'll be having Simpson 3/8 rule. So I'm heading towards trapezoidal rule. So this is the first method for integration, right? So हमें क्या निकालना है? We have to find integration of x naught starting from x naught till xn f of x dx. तो हम क्या करेंगे? We can break this. हम x naught से पहले x1 पे जाएंगे, x1 से x2 पे जाएंगे, and so on करते करते xn minus 1 से xn पे जाएंगे. Obviously बीच में यहाँ पे fx dx is there everywhere. So now in general अगर मैं कोई भी इंटीग्रल की बात करूं xj to xj plus 1, अब आपके पास क्या है? आपके पास एक तो xj, you have xj, you have xj plus 1, और आपको पता है xj पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज yj एंड yj plus 1. So जैसे हमने इंटरपोलेशन भी किया था, पूरे फंक्शन को डायरेक्टली इंटरपोलेट करने की बजाय मैं इंटरवल्स में इंटरपोलेट करूंगी. What we will do, so we are in the interval xj to xj plus 1. What we will do, we will interpolate, we will try to find the value of the polynomial in this interval. कौन से इंटरवल में? xj और xj plus 1 वाले इंटरवल में, right? So we know we'll be using forward interpolation. That is easy to use. So in this interval I have xj, I have xj plus 1, I have yj, I have yj plus 1. So न्यूटन मेथड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए होता है. तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक ही वैल्यू है, so yj plus 1 minus yj. So you see this is delta of yj. So delta of yj कितना आ जाएगा? yj plus 1 minus of yj, right? So let me write the formula. So if you remember, formula uses this value. Formula uses this value. So in general अगर मैं दो पॉइंट्स को यूज करके फॉर्मूला बनाऊंगी, right? So let me write the formula here. So formula क्या बन जाएगा? The polynomial is what? इसमें y naught is the starting value. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? yj plus p of delta yj. अब आगे डेल्टा स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं है, तो सिर्फ पॉलिनोमियल इतना बना. तो अब अगर आप देखो ये जो पॉलिनोमियल है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ p, बट मेरी इंटीग्रेशन है इज इन टर्म्स ऑफ x, राइट? सो व्हाट वी विल डू, आई विल चेंज द इंटीग्रेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कॉल इट एज p. तो हमें पता है p क्या होता है? p इज नथिंग बट x माइनस x नॉट. तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? बिकॉज हमारा इंटरवल है xj to xj plus 1, so starting value is xj, so x minus xj over h, right? So this is p. अब मेरे इंटीग्रल में तो dx आ रहा है, बट मुझे तो dp चाहिए. आई नीड, बिकॉज अगर मुझे p में इंटीग्रल लिखना है तो आई नीड dp. So you see dp will be how much? Derivative with respect to p will be how much? अब यहाँ पे ये टर्म तो कांस्टेंट है, xj तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1/h, साथ में क्या हो जाएगा? dx. तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई? h into dp. अब दूसरा अगर आप देखो तो हमने dx को तो चेंज कर दिया है, और f of x हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ p. So this is f of x in terms of p, बट मुझे लिमिट्स भी चेंज करनी है. So you see लोअर लिमिट इज xj. So when x is xj, lower limit कितनी बन जाएगी? xj minus xj by h. So this is 0. And upper limit is how much? Upper limit is xj plus 1. So when x is xj plus 1, p की वैल्यू कितनी आ गई? अब xj plus 1 minus xj. So this all the values are equidistant. We are assuming that the value, क्योंकि न्यूटन फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब इक्विडिस्टेंस है.
So you see, this is h by h, this is equal to 1. So I can convert this formula. So I can convert this formula, right, in terms of p. So what I get? So integral xj plus 1 f of x dx will be what? You see, lower limit is 0, upper limit is 1. f of x हमारा कितना बन गया था? yj plus p into delta of yj, और dx की वैल्यू कितनी आई थी? h into dp, तो h तो बाहर आ गया. So अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन p के साथ है. So you see, let me simply integrate. So yj is constant, और हमें पता है कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कितनी होती है? p. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p है. अब डेल्टा yj इज कांस्टेंट, सिर्फ p बचा. p की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? p स्क्वायर बाय 2. लिमिट्स आर 0 to 1. जब आप लोअर लिमिट डालोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा. जब आप अपर लिमिट डालोगे, ये साथ में p के साथ yj भी आएगा. तो जब आप अपर लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा? yj plus delta yj by 2. Now let us put the value of delta yj. So what is the value of delta yj? So this is 1 by 2 नीचे. So ये क्या बन जाएगा? एक स्टेप आगे. So yj plus 1 minus yj. So if you see what this will be, so already एक yj by बाहर पड़ा है. So if you see अंदर क्या बन जाएगा? h. So yj plus 1 by 2 plus yj by 2. तो हम 2 को बाहर ले. तो ये देखो, ये वैल्यू बन गई xj ओवर xj plus 1 की. तो इन जनरल हमें क्या चाहिए था? हमें इंटीग्रल चाहिए था. इन जनरल हमें इंटीग्रल चाहिए था. So हमें इंटीग्रल चाहिए था x naught to xn fx dx. So I'm now compiling the final formula. So हमने क्या किया? इसको ब्रेक किया. x naught to x1, x1 to x2, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? xn minus 1 to xn. हर इंटीग्रल में fx dx है. और ऊपर हमने जनरल वैल्यू निकाल ली है. तो अगर आप देखो सारी टर्म्स के साथ h by 2 तो कॉमन आ जाएगा. अब देखो एक्स जे हमें 0 से शुरू करना है, तो j को 0 लेते हैं. जब j को 0 लेंगे तो 0 to 1. तो ये क्या बन जाएगा? y0, j को हमने 0 लिया है, सो y1 plus y0. फिर नेक्स्ट में हम j को 1 लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा? y2 plus y1. फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? y3 plus y2. ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में क्या आ जाएगा? n minus 1 लेंगे, तो yn plus yn minus. So finally, if I club this whole, so what we get? So if we club this whole, what we get? So h by 2, right? अगर आप देखो y0 और कहीं नहीं आ रहा, so y0 is as such. एक बार y1, एक बार y1, so 2 times y1. फिर y2, y2, so y2. ऐसे चलते चलते ये yn minus 1, आगे भी कहीं yn minus 1 आएगा, yn सिर्फ लास्ट में. So you see, this is the trapezoidal rule. That's it. So what does trapezoidal rule says? अगर आपको इंटीग्रेशन निकालनी है xn x naught to xn f of x dx, so what is the formula? h by 2. h is what? h is the common ratio, जो common difference है. y0 is the first value of y plus yn. yn is the last value of y. इन टर्म्स जो बीच में वैल्यूज हैं उनका डबल कर दो. तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ऐसे ही ऐड करना है, y की वैल्यूज, x की वैल्यूज नहीं, और जो बीच में y की वैल्यूज है उनका डबल करके उनको ऐड करना है. बेटा, इज इट क्लियर? Yes. The second thing is, so the second method is the Simpson rule. So Simpson के दो रूल हैं, 1/3, Simpson 1/3 जिसको हम बोलते हैं, और एक Simpson 3/8. Right? So you see, this is the trapezoidal rule. This is all what we discussed.
just 1 second. See, this is all what we discussed, and you see this is the trapezoidal. So h by 2, first value plus last value plus 2 times the middle value, right? Now, so here also if you see what actually we are doing, so geometrically what we are doing, हमने क्या किया था, हमने so if we try to look geometrically, हमने in general xj और xj plus 1 इस इंटीग्रल को हमने लिखा था h by 2 yj plus yj plus 1. तो अगर आप देखो हमारे पास suppose this is my x axis, y axis, this is my some curve, right? So this is my xj. So xj corresponding value is yj. This is xj plus 1. So value is yj plus 1. और हमें पता है जो इंटरवल का width है, this is h. So अगर आप देखो हमें, अगर मैं इस यहाँ पे ट्रेपेजियम पैरेलल इसको कंप्लीट कर दूं, right? Say what I do, right? Just let me just join these two sides. So you see this is a trapezium. So this is a trapezium kind of structure. Just for visibility, let me take this as this. So you see this is a trapezium, and we know area of trapezium is what? Half into height. So if you see the height of the trapezium is h into the sum of the parallel sides, and parallel side is how much? yj and yj plus 1. So हमने बेसिकली क्या किया, हमने पूरे रीजन को छोटे छोटे ट्रेपेजियम्स में डिवाइड कर दिया, और फाइनली हमने एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाला और सारे ट्रेपेजियम्स को ऐड कर दिया. So we get the total area, that is the integration. So this is the reason this rule is known as trapezoidal rule. But is it fine? Yes, ma'am. Right. Okay. So before we move to the next rule, Simpson 1/3 rule, right? Let me do the error for the trapezoidal rule. So you see error again. Now you अभी अगर आपने देखा हो जो मैंने फिगर बनाई थी, ये हमारा ट्रेपेजियम था, हमने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया था. अगर मैं ट्रेपेजियम बनाऊंगी तो ऐसे बनाऊंगी. तो आप ये देखो ये जो एरिया है ये ऑल्दो उसमें नहीं है, ऑल्दो मेरी कर्व के अंडर नहीं था, बट मेरे ट्रेपेजियम के अंडर आ गया. तो हमने इस एरिया को कैलकुलेट कर लिया. ऐसे ही हो सकता है मेरा कर्व ऐसे हो, तो मेरा ये ट्रेपेजियम बन गया यहाँ, और हो सकता है मेरी कर्व यहाँ से ऐसे होती. तो मेरा देखो ट्रेपेजियम का एरिया तो सिर्फ यहाँ तक आएगा, तो ये वाला एरिया जो है ये कहीं पे पिक्चर में ही नहीं आया. सो देयर इज फॉर श्योर द रीजन, द थिंग दैट वी आर मेकिंग द एरर. Now the question is how much error we are making. So let us see the error in the trapezoidal rule. So हमने क्या किया, अगर हमने कोई भी इंटरवल लिया था xj plus 1, उसका एरिया हमने कैसे निकाला? h by 2 f of xj plus 1, right? So we will just, this is very very easy. So we just have to apply the Taylor series. So अगर आप देखो इसमें दो टर्म्स आ रही है, f of xj और दूसरी टर्म आ रही है xj plus 1, and we know this is nothing but what? f of xj प्लस h, बिकॉज हर टर्म में j और j प्लस 1 में डिफरेंस h का है, और हमें पता है यहाँ पे आई कैन अप्लाई टेलर सीरीज. सो f of x प्लस h क्या होता है? f of x की जगह xj है, प्लस h इंटू f डैश ऑफ xj प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ xj प्लस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ xj x सो ऑन. तो हमने क्या किया, xj plus 1 की ये वैल्यू इस ब्रैकेट में डाल दी, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी 1 xj was there, so you see we get 2 xj's, right? So what will happen, so let us now send this 2 inside. So h is here, यहाँ पे तो 2 f of xj हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो 1 term will cancel. So you see f of xj, h by 2 f dash of xj, h square by 4 f double dash of xj and so on. ये हमने फैक्टोरियल्स को खोल दिया, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6. बेटा इज इट क्लियर? बेटा यहाँ तक किसी को डाउट? हमने सिर्फ अभी टेलर सीरीज एक्सपेंशन को ओपन किया है. बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. अब हमने क्या किया, now what we will do, we will just put the value of h.
right? So prior to that, so basically if you see in general अगर मैं कोई भी point लूं in the interval x and xj plus 1, right? तो अगर मैं इस फंक्शन को, इस इंटीग्रल को, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, हम इसको अबाउट एनी पॉइंट x एक्सपैंड करें, इफ आई एक्सपैंड दिस इन अबाउट एनी पॉइंट x, तो हमें पता है टेलर सीरीज क्या हो जाती है, f ऑफ xj प्लस f डैश ऑफ xj, और साथ में h की जगह क्या आ जाता है, x माइनस xj। आई मीन उन, अगर मैं टेलर सीरीज अबाउट दैट पॉइंट लगा रही हूँ, पहले हमने टेलर सीरीज xj प्लस 1 के अबाउट लगाई थी, तो xj प्लस 1 माइनस xj, h आ गया था। तो अभी मैं कह रही हूँ इन जनरल अगर मैं कोई पॉइंट x लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस xj। तो व्हाट विल हैपन, एवरीवेयर इंस्टेड ऑफ h यू विल हैव x माइनस xj। तो ये हमने दो तरह से किया है, पहले हमने टेलर सीरीज लगाई फॉर्मूले के ऊपर, xj प्लस 1 था हमारे पास, जो भी पीछे इक्वेशन आई वो आ गई। अब हमने क्या किया, सेम इंटीग्रल को दूसरी तरह से इवैल्यूएट किया। तो हमें कौन सा इंटीग्रल चाहिए था, इंटीग्रल xj टू xj प्लस 1 f ऑफ x dx। तो हमने क्या किया, हमने सेम इंटीग्रल को, यू सी j, दिस इज xj प्लस 1 f ऑफ xj। एक मेथड तो आपने अभी देखा, हमने जो सिम्पसन से फॉर्मूला बनाया था ट्रेपेजॉइडल से, उसकी हेल्प से टेलर सीरीज लगा ली। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ xj प्लस 1, so this I can write as f of xj plus x minus xj। So if you see, this is what, xj plus some number, so this number is my h now, so f of xj plus h। अब मैंने फिर से इस पे टेलर सीरीज लगा दी, तो वो क्या बनेगी, f of xj plus h into f dash of xj। तो h की जगह क्या आ गया, x minus xj, फिर x minus xj का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ xj एंड सो ऑन। बेटा क्लियर है, बेटा क्लियर है, गर्ल्स क्लियर है? हमने इस इंटीग्रल को दो तरह से ओपन किए एंड अल्टीमेटली हम दोनों को वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, तो जो दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस होगा दैट विल बी द एरर। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, इफ दिस इज क्लियर, सो इफ यू सी इंटीग्रेट करना है हमें, सो वे लेट अस डू द इंटीग्रेशन। सो वेयर फर्स्ट फंक्शन इज, फर्स्ट वैल्यू इज f ऑफ xj, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, तो x आ गया। अब सेकंड वैल्यू क्या है, x माइनस xj इंटू f डैश ऑफ xj, f डैश ऑफ xj इज कांस्टेंट, वो तो ऐसे ही आ गया, और x माइनस xj, इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन क्या करूंगी, x टू द पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो ये क्या बन गया, x माइनस j का होल स्क्वायर ओवर 2। सिमिलरली x माइनस j का होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x माइनस j का होल क्यूब ओवर 3, और नीचे 3 इंटू 2 कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। और इंटीग्रल की लिमिट कहाँ है, xj टू xj प्लस 1। नाउ लेट अस पुट द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। सो पहली बार क्या आ जाएगा, f ऑफ xj, और साथ में क्या आ जाएगा, xj प्लस 1 माइनस xj, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इधर क्या आ जाएगा, अब इधर x है, राइट, सो लेट अस पुट द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। तो अगर आप देखो इंटीग्रल की सेकंड टर्म क्या है, x माइनस xj का होल स्क्वायर। सो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, xj प्लस 1 माइनस xj। अब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, सो माइनस xj माइनस xj। तो यू सी ये xj माइनस xj तो आपस में कैंसिल हो गया, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, xj प्लस 1 माइनस xj का होल स्क्वायर। सो यू सी xj प्लस 1 माइनस xj का होल स्क्वायर। ऐसे इधर क्या आ जाएगा, xj प्लस 1 माइनस xj का होल क्यूब। सो नाउ वी नो xj प्लस 1 माइनस xj कितना होता है, दिस इज h, इधर का आ गया h स्क्वायर बाय 2, इधर क्या आ गया h क्यूब बाय 6 एंड सो ऑन। अब जो हमने पहली टर्म लिखी थी उसमें हमने h बाहर रखा था, सो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ भी h कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया। सो दिस इज द इक्वेशन विच वी गॉट बाय वन मेथड, एंड इससे पहले हमने इक्वेशन निकाली थी बाय अनदर मेथड। तो अगर कोई एरर है तो वो हमें कैसे मिलेगी, इन दोनों वैल्यूज के डिफरेंस से, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों चीजें कर तो सेम चीज ही रही है। तो हमने क्या किया, दोनों फॉर्मूलाज को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपस में। सो इफ यू सी, दिस वाज द वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वाज द वैल्यू फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन।
तो अगर आप देखो h f of xj, h f of xj कैंसिल, h by 2 f dash of x में h by 2 f dash of xj कैंसिल, इधर क्या बच गया h स्क्वायर, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे क्या है, सो h स्क्वायर एलसीएम हमारा 12 हो गया, तो 2 और उधर माइनस है 2 minus 3 into f double dash of xj, so 2 minus 3 is -1, तो कितना आ गया माइनस, एक h बाहर भी पड़ा है तो एक क्यूब बन जाएगा, सो माइनस h क्यूब बाय 12 into f double dash of xj। बेटा अगर आप बाकी टर्म्स देखो, नेक्स्ट टर्म में h4 बन जाएगा, h5 बन जाएगा, h क्या है इंटरवल की विड्थ है, तो हमें पता है कि विड्थ इज अ स्मॉल क्वांटिटी, राइट, इन जनरल जब हम पॉइंट्स लेते हैं हम स्मॉल स्मॉल डेविएशन पे पॉइंट्स लेते हैं, तो विड्थ इज अ वेरी स्मॉल नंबर, और जैसे आप स्मॉल नंबर की पावर्स बढ़ाते जाओगे वो और छोटा बनता जाएगा। So what we can do is we can ignore the higher order terms. So when I'm saying higher order terms means जो higher powers है उसको हमने ignore कर दिया, because वो that number will be of the sort 0.01, फिर इसका square किया 0.001, so that will not make much of the difference. So what is the final error? So minus h cube by 12 f double dash of xj. Further अगर आप चाहो, so you see this is the truncation error. So this is the truncation error in the Newton this trapezoidal rule. So minus h cube by 12 f double dash of xj. और अगर हम फर्दर चाहें इसको फर्दर, अब ये जो हमने एरर निकाली थी ये हमने एक इंटरवल में निकाली है, so this error is only in one interval. इंटरवल कौन सा था हमारा xj to xj plus 1, बट हमने टोटल इंटीग्रल में तो क्या आएगा सम था, so xj to xj plus 1 में एरर कितनी आई है minus h cube by 12 f double dash of xj. It means जब मैं x0 to x1 करूंगी तो एरर कितनी आएगी minus h cube by 12, तो सब में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे f double dash of x0, f double dash of xn, so on up to f double dash of xn minus 1. So what we want, I want an upper bound of the error, मतलब एक तरह से मुझे ये चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है मेरे कैलकुलेशन में, बिकॉज एरर, सो इट्स लाइक कोई बच्चा 2 एरर कर रहा है, कोई 3 एरर कर रहा है, तो एरर मींस जो, सो 3 इज अ बिगर एरर, राइट, सो आई वांट टू फाइंड कि मैक्सिमम एरर मेरे उसमें कितनी हो सकती है कैलकुलेशन में, राइट। सो यू सी हमने क्या किया इस पूरे डाटा का, सो दिस इज वन वैल्यू, दिस इज अनदर वैल्यू, दिस इज अनदर वैल्यू, सो इन सारी वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, से सपोज इन सब में से दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू, right, so it means this value will be less than or equal to this, so what we have, so f double dash of x0 will be less than or equal to this, similarly f double dash of x1 will be less than or equal to this, and so on, f double dash of xn will be less than or equal to this and minus 1. So obviously अगर मैं इनका sum कर दूं, so what I'll get, sum of all these numbers, so f double dash of x0 plus f double dash of xn minus 1 will be less than or equal to what, 0 से शुरू हुए थे n minus 1 तक गए थे, तो n बार सम आ गया, so n into f double dash of x bar. So this is like just हमने maximum value से replace कर दिया, so you see maximum error in this case is how much, minus h cube by 12 n into f double dash of x bar, राइट। फर्दर हम h पे डिपेंडेंसी देखने के लिए जितना हो सके h को अरेंज कर सकते हैं, सो h स्क्वायर इज हियर, एक h को हमने कंबाइन कर दिया nh से, तो अगर आप देखो x0 में एक बार h ऐड कर रहे थे तो आपको x1 मिल रहा था, 2 बार ऐड करोगे तो आपको x2 मिलेगा, राइट, तो ऐसे ही अगर आप x0 में n बार h ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, xn मिल जाएगा। So from here xn minus x0 is how much, nh. So nh की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, xn minus x0. So अगर आप फाइनली देखो, so if you see from here this is the error in the total integral by the trapezoidal rule, और अगर आप देखो h की पावर is 2, so this order is of order h square. तो जितना h आपका छोटा होता जाएगा, जितना आपका इंटरवल छोटे होते जाएंगे, उतनी आपकी वैल्यू और एरर की वैल्यू और छोटी होती जाएगी, उतनी जल्दी आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। बेटा इज इट क्लियर? Yes, ma'am. गर्ल्स किसी को किसी स्टेप में डाउट? सो जस्ट टू व्हाट यू कॉल इट एज एंड अप, सम अप, हमने आज ट्रेपेजॉइडल रूल देखा है,
और ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला आपने याद रखना है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए. सो x0 वैल्यू इज y0, x1 वैल्यू इज y1, xn value is yn. So trapezoidal rule say you will get the integration. So what is the answer? h by 2 first value plus last value. किसकी? y's की. So first value plus last values plus 2 times the middle values. So y1 middle means जो बाकी बच गई, y1 y2 so on up to yn minus. That's it. This is the formula for trapezoidal rule. सीधा ये formula हम questions में लगाएंगे. Beta, is it clear? Yes, ma'am. Right. Tomorrow Yes, I'll do ma'am. Simpson 1/3 and Simpson 3/8 rule. और उसकी derivation पे मैं इतना time नहीं वो करूँगी. I'll just give you the broad steps because derivation is totally same जैसे हमने यहाँ